गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज पार्स सिंह। जैसा कि मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि कोरिलेशन करेंगे स्ट्रिंग थ्योरी का। और पहले हम समझते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी क्या है। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा एनिमेशन है आपको समझाने के लिए, एंड वन ऑफ द वंडरफुलेस्ट एक्सपीरियंसेस फ्रॉम ब्रायन ग्रीन। सो ही इज अ साइंटिस्ट एंड क्वांटम फिजिसिस्ट आई गेस। तो लेट्स गो। Imagine I have a beautiful tree that's filled with oranges. And I ask myself, what is the orange made of? How do I answer that question? Well, I want to look deeply inside the orange, so I magnify it. And I magnify it again. And if I keep on doing it, deep inside, sooner or later, I begin to see molecules come into view. But molecules are not the end of the story, because the molecules, I can enlarge them. And if I make them big enough deep inside, I begin to see atoms. Atoms are not the end of the story too, because we have electrons zooming around the nucleus. Deep inside, mostly empty space in the atom, but deep inside, we see the nucleus. So if I grab that and magnify it, तो अभी न्यूक्लियस की तरफ आ चुके हैं एंड वी आर जूमिंग इन फर्दर। I see that the nucleus is itself made of particles, neutrons and protons. And if I grab one of the neutrons and magnify it, I find yet further particles, little tiny quarks inside. Now that is where the conventional ideas stop. String theory comes along and suggests that inside these particles there is something else. So if I take a little quark and I magnify it, conventional idea says there's nothing inside, but string theory says I'll find a little tiny filament, a little filament of energy, a little string-like filament. And just like the string on a violin, I pluck it and it vibrates, creates a little musical note that I can hear. The little strings in string theory, when they vibrate, they don't produce musical notes, they produce the particles themselves. तो अभी तक इसको समझ लेते हैं। एटम जो है उस तक चले गए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस को हमने और जूम इन किया। आई थिंक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन साथ में रहते हैं, तो उनको हमने जूम इन किया और उसके बाद हमें क्वार्क्स मिले। क्वार्क्स तक खत्म हो चुका है, कन्वेंशनल ये है अभी तक। अब इसके बाद जो थ्योरी आती है वो ये है कि जब हम फर्दर जूम करते हैं तो हमें धागे मिलते हैं, और ये जो धागे हैं ये गिटार की तरह, वायलिन की तरह बेसिकली इसको ये वाइब्रेट हो रहे होते हैं। जब ये वाइब्रेट हो रहे होते हैं तो ये पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं, यानी फॉर्म। अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है तो एक पर्टिकुलर फॉर्म आता है, एक पर्टिकुलर अगर फ्रीक्वेंसी है तो पर्टिकुलर फॉर्म आता है। कह सकते हैं कि अगर एक एनालॉजी अगर ले लें कि अगर ये वाली आवाज है तो इसका अलग फॉर्म है, अगर ये वाली आवाज है तो इसका अलग फॉर्म है। मतलब ये लिटरली ऐसा नहीं है, बट जस्ट फॉर एन एक्सप्लेनेशन में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो थ्रेड्स हैं, ये जो स्ट्रिंग्स हैं, ये वाइब्रेट करती हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे, तो अलग अलग फॉर्म्स पैदा होते हैं। ठीक है। Quark is nothing but a string vibrating in one pattern. An electron is nothing but a string vibrating in a different pattern. एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्ट्रिंग है, वो वाइब्रेट हो रहा है अलग पैटर्न पे। अलग पैटर्न मतलब क्या? एक अलग तरीके से वाइब्रेट हो रहा है। Neutrino, nothing but a string vibrating in a different pattern still. So if I take all of this back together, I have my ordinary orange, and if these ideas are right, they are speculative, but if they are right, deep inside the orange or any other piece of matter is nothing but a dancing, vibrating cosmic symphony of strings. Symphony, vibration. Where there is a vibration, there has to be a sound. Without the vibration, there is no sound. Without the sound, there is no vibration. You need to understand something. There has to be something vibrating in order to produce a sound. So this is the basic theory from the quantum physics view. अगर आप पार्टिकल और वेव की थ्योरी को देखोगे तो जब ऑब्जर्वर है तो पार्टिकल है, जब ऑब्जर्वर को हटा दो तो पार्टिकल नहीं है। अगर मैं इसको देख रहा हूं तो ये सॉलिड है, लेकिन अगर कोई नहीं है देखने वाला तो ये सिर्फ वेव है। ये डबल स्लिट थ्योरी है बेसिकली, वो आप समझ सकते हो यूट्यूब पे जाके। लेकिन अगर हम फर्दर देखें तो इस कप में बेसिकली अलग अलग
मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं, एटम्स के अंदर भी जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उसको अगर हम जूम करते हैं, क्वार्क्स हैं, उसको भी अगर हम जूम करते हैं तो आप देखोगे कि स्ट्रिंग मिलेगी। वो स्ट्रिंग अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, अलग अलग पैटर्न्स पे वाइब्रेट कर रही है। यहां तक बोला जा रहा है अभी तक। और जहां भी वाइब्रेशन, और ये हमारे वेदांता में पहले से ही बोला जाता है, स्क्रिप्चर्स में बहुत पहले से ही बोला जा रहा है। इनफैक्ट अब ये मल्टीवर्स पे भी आ रहे हैं। मल्टीवर्स भी हमारे इसमें बोला जा चुका है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीवर्स। जैसे लोकों की बात होती है, अलग अलग लोक होते हैं, वैसे आप देखोगे तो अलग अलग इसमें मल्टीवर्स की बात है। बट मल्टीवर्स में अभी हम नहीं जाएंगे बिकॉज दैट इज नॉट द कॉन्टेक्स्ट। द कॉन्टेक्स्ट इज वेदर द साउंड ऑफ साइलेंस इज राइट और नॉट। सी दीज ऑल द फैक्ट्स आई हैव गिवन फ्रॉम ऑल दीज दिग्गज, ऑल दीज साइंटिस्ट फ्रॉम द क्वांटम फिजिक्स मैंने दिया है आपको। लेकिन मैंने क्या बोला आपको? यू विल नॉट बिलीव इट अनलेस एंड अनटिल यू विल लिसन इट योर सेल्फ। मैं अर्ज करता हूं आप लोगों से कि अपने ईगो को 1 मिनट के लिए साइड में रखिए और हमें हर तरफ से इनपुट्स लेने चाहिए, ठीक है? जब एलियन का इन्वेजन हो रहा होगा तो सिर्फ एक कंट्री से आप सजेशन नहीं लोगे। एक प्रॉब्लम है, एलियन आ गए हैं, आप सारी कंट्रीज, आप रशिया से लोगे, चाइना से लोगे, सब मित्र हो जाएंगे, ठीक है? यूरोप से लोगे, सबसे लोगे ना। एक कंट्री से थोड़ी लोगे कि नहीं नहीं यही सही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी समस्या जो गहरी नहीं है, समस्या डेथ से रिलेटेड नहीं है, बर्निंग डिजायर नहीं है समस्या का। समस्या को खत्म करने के लिए बर्निंग डिजायर नहीं है। अगर आपके अंदर सच में जानने की चाह है ना, क्योंकि निष्कर्ष देना बहुत दुर्बुद्धि का काम होता है कि उठा के निष्कर्ष दे दिया, निष्कर्ष उठा के फट से दे दिया। ऐसे निष्कर्ष नहीं दिया जाता सर, ठीक है? आप लोगों से कोई मेरी प्राइवेट दुश्मनी नहीं है। आप सबका मैं और अपना भविष्य अच्छा चाहता हूं, ठीक है? इस दुनिया को आज के टाइम में बहुत जरूरी है इसको सुनाना, क्योंकि रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है सर। और रेस्टलेसनेस जितना ज्यादा बढ़ेगी, उसके अपोजिट उसका जो मित्र है क्रोध, वो भी बढ़ेगा, ठीक है? बेचैन मन जिसमें सुख नहीं है, विचलित मन क्रोधित होता है, और क्रोध डिस्प्लेस होता है। क्रोध को आप दबा नहीं सकते। जब क्रोध बढ़ जाता है, हाय कबूतर, तो डिस्प्लेस होता है। डिस्प्लेस क्या? इस पे कि फोड़ डाला कब। ज्यादा गुस्सा हो किसी और को फोड़ डालोगे। समझने की कोशिश करिए। आज के टाइम में अनहद ध्वनि की सबको बहुत ज्यादा जरूरत है। इस ध्वनि ने मेरी जिंदगी चेंज करी है, मेरे जीवन में परिवर्तन लाया है। वो परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि उस परिवर्तन में सब्सक्राइबर्स नहीं होते हैं, उस परिवर्तन में मिलियन ऑफ व्यूज नहीं होते हैं, उस परिवर्तन में पैसा नहीं होता है। वो परिवर्तन सिर्फ मनुष्य जिसको हुआ है उसको से पता चलता है। मैं सिर्फ आपको बता सकता, आई कैन नॉट टीच यू समथिंग, आई कैन जस्ट मेक यू थिंक। मैं आपको कुछ भी नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद ना चाहें, और मैं अगर चाहूं भी तो भी आपको खुद नहीं सिखा सकता, क्योंकि आप सिर्फ अपनी सोच को खुद बदल सकते हैं, मैं नहीं बदल सकता सर। आई विल नॉट बी एबल टू चेंज यू और एनीबडी एल्स। बदलाव भीतर से आता है, बदलाव बाहर से नहीं आता, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया हो। तो बेसिकली द पार्टिकल्स इज फॉर्म्ड बिकॉज देर इज अ स्ट्रिंग विच इज वाइब्रेटिंग ऑन अ डिफरेंट पैटर्न। सेवरल स्ट्रिंग्स आर देयर, वो वाइब्रेट कर रहे हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे या पैटर्न्स पे, उसकी वजह से एक फॉर्म जनरेट होता है। ये जो अणु है, इसकी बात गौतम बुद्ध ने भी करी थी। उन्होंने बोला था ये सेकंड के 8वें हिस्से में ये आता जाता रहता है, अणु गायब होते हैं और आते हैं, लेकिन वो इतनी तेजी से होता है कि हमें दिखता नहीं। सो अगर आपको ऐसे और भी चीज़ें सीखनी है, सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत तगड़ा करने वाला हूँ, वो है लॉजिकल डिसीजन मेकिंग वर्सेस इमोशनल डिसीजन।